Hello, Glide aspirants. So we are left with last 24 to 48 hours, and a lot of you people must be searching for videos or the most important current affair topics that you must go through in the last 2 days or a single day. And I have come up with a video. So yeah, you have reached to the correct place, because this is gonna be a video where I'll be telling you, or I'll be giving you 10 most important current affair topics with some bonus legal current affair topics that you must definitely go through or revise before going to write your CLAT entrance examination. So please watch this video till the end. And if you like this video, please press the like button. Also share this video with as many CLAT aspirants out there as you have, or your friends. And if you haven't subscribed to our YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel. Let's begin. Some of the important topics that you must definitely go through are, the first one is 50th G7 summit. Now, I've written some of the details here. You can always go through this, but I'll just explain what all things you must search for. Okay, I've not mentioned all those details because I cannot afford to make this video a 2-hour session or 3-hour session. So I'll just give you the things that you must go through, or the important points that you must go through in that topic, right? You know the drill because you have already prepared for 6 months or an year now, एंड यू मस्ट नो कि किस तरीके से हम लोगों को किसी भी टॉपिक को क्लैट के लिए पढ़ना रहता है. सो क्लैट में जब भी आप कोई टॉपिक देखते हो तो आप उसकी हिस्ट्री, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, डेटा पॉइंट्स, एंड ऑफ कोर्स यू ऑल्सो गो थ्रू दी इफ दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू इंडिया, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंस है उस टॉपिक का, यू हैव टू ऑलवेज सर्च फॉर दैट. When I talk about G7 summit, it was the 15th G7 summit which was held in Italy. You must know the Prime Minister name and कितने members हैं, कौन कौन सी countries हैं, you must learn those, the names of those 7 countries. Theme क्या था, you must also go through that. क्या क्या important बातें हुई थी, तो एक जो important topic था that was related to Ukraine and Russia war. So you must definitely go through those topics also. You must read about a bit about Ukraine and Russia war too, the current scenario which is going on. Definitely you must also look for where the 51st G7 summit is gonna be held. It is Canada, and the 49th which was held in Japan. So you must also read about these topics. You must also go through the first G7 summit which was held, right? So ये कुछ important तरीके हैं जहाँ से आपको, या important points है जिस पे आपको research करनी है, and you have to search among those topics. Next, Paris Olympics, again very important. Paris Olympics ही नहीं, Paris Olympics के साथ Paralympics भी, ठीक है. तो दिस इज समर ओलंपिक्स, दोनों ही पेरिस में हुए थे ऑफ कोर्स. थीम क्या थी, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट. थीम सॉन्ग वाज पैरेड. इट वाज 33rd एडिशन पेरिस ओलंपिक्स की बात कर रहा हूँ. डेट्स क्या थी, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द पैरालंपिक्स की डेट्स क्या थी. यू हैव टू गो थ्रू दी मेडल टैली ऑफ इंडिया, है ना. इंडिया में किसने जीता, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, इम्पॉर्टेंट कंट्रोवर्सीज, है ना. आपको इंडिया से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सीज हुई थी इस साल, यू मस्ट गो थ्रू देम. यू मस्ट नो दी डेब्यूट स्पोर्ट्स विच इज़ ब्रेकिंग डांस, है ना. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, आई हैव रिटन सम ऑफ देम. यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दिस, लेकिन प्लीज़ गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट data points which are related to Olympics. This is gonna be very important. You must also learn कि ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर्स कौन थे समर ओलंपिक्स के लिए और पैरालंपिक्स के लिए. यू मस्ट ऑल्सो लर्न दैट फॉर इंडिया स्पेसिफिकली, ओके. एंड the next places where Olympics is gonna be held. So विंटर ओलंपिक्स जो है वो इटली में होने वाला है 2028 का. समर ओलंपिक्स LA, लॉस एंजल्स में होगा. फिर ब्रिस्बेन में होगा 2032 का. एंड इंडिया हैज़ शोन इट्स इंटेंट टू होस्ट 2036 Olympics. So this is again an important topic that you must definitely go through. Next is war in Middle East. Now इस पे last year already question आ चुका है, but बहुत ज़्यादा improvement है. Last year तक it was just
अक्टूबर में हुआ था. इट वाज जस्ट इज़राइल एंड हमास, गाज़ा पट्टी और इज़राइल के बीच में जो वार था वो चल रहा था. फिर उसमें ईरान, हिजबुल्ला, लेबनान, यमन, सीरिया, है ना, यहाँ से जो चीज़ें हो रही, पूरे मिडल ईस्ट में जो वार की सिचुएशन बढ़ने लगी बहुत ज़्यादा. और ख़ासकर उसमें आई गेस इम्पॉर्टेंट रोल जो रहने वाला है वो रहने वाला है इज़राइल और ईरान पक्का. सो यू मस्ट गो थ्रू द कैपिटल्स, the changes that have taken place, the missiles that they have attacked, all those little bit of details जहाँ से भी आपको जीके के डेटा पॉइंट्स मिल सकते हैं वो आपको डेफिनेटली लिखने चाहिए. लिखने की ज़रूरत नहीं लगेगी, आई गेस लास्ट डे है तो फिर यू मस्ट गो थ्रू दैम. अभी अपने पास टाइम नहीं बचा है कि हम लोग लिखें, यू जस्ट गो थ्रू दैम. अगर आप लोगों ने ऑलरेडी लिख रखा है यू मस्ट रिवाइज दैम, है ना. इसी चीज़ में आई गेस लास्ट ईयर हमास का फुल फॉर्म पूछा गया था, सो यू मस्ट गो थ्रू दी हमास का जो कंप्लीट फुल फॉर्म है. हिजबुल्ला और हुदी इसमें कोई भी फुल फॉर्म नहीं है. सो यू मस्ट डेफिनेटली दो गो थ्रू दिस. यू मस्ट ऑल्सो गो थ्रू द जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस, है ना. इससे रिलेटेड रेड सी का जो जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है, सुएज कैनाल का जो जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है, यू मस्ट ऑल्सो गो थ्रू दोज लिटिल बिट पॉइंट्स ऑल्सो, राइट. देन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का जनरल इलेक्शन 2024 लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था, यू मस्ट रीड द डेटा पॉइंट्स. इस साल ऑलमोस्ट 95 करोड़ वोटर्स थे जो एलिजिबल थे वोट कास्ट करने के लिए, टोटल 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन में से, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से. एंड कितने लोगों ने वोट कास्ट करा, फीमेल्स और मेल्स का रेशो क्या है. यू मस्ट ऑल्सो सी नोटा, कितने लोगों ने नोटा सबसे ज़्यादा नोटा पे बटन दबाया. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इंदौर वॉज दी सिटी जहाँ पर इंदौर में सबसे ज़्यादा नोटा बटन जो है दबाया गया था. यू हैव टू गो थ्रू दैट डिटेल्स. आपको वो जो छोटे छोटे जीके के पॉइंट्स होते हैं वो डेफिनेटली आपको उससे गो थ्रू करना चाहिए. देन यू मस्ट ऑल्सो रीड वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी रिलेटेड विच इज़ रिलेटेड टू इलेक्शन इटसेल्फ. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन कॉन्स्टिट्यूशन के DPSP का पार्ट बनता है. वन नेशन वन इलेक्शन इज़ नॉट दी पार्ट ऑफ DPSP. आई एम सॉरी, इन रॉन्ग, मैं UCC से जोड़ रहा हूँ उसको. बट देन दिस इज़ समथिंग विच वॉज प्रीवियसली डन इन इंडिया. पहले जो इलेक्शंस थे वो एक इलेक्शन होता था और उसी में ही स्टेट के इलेक्शंस और लोकसभा के इलेक्शन हो जाते थे, जनरल इलेक्शन हो जाते थे. बट देन विद टाइम इट चेंज, जैसे जैसे इमरजेंसी लगी एंड देन विद अ लॉट ऑफ थिंग्स काफ़ी कुछ जो टाइमिंग्स है वो बदल गई स्टेट्स के लिए और जनरल इलेक्शन के लिए. सो यू मस्ट डेफिनेटली गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ दिस टू. यू मस्ट ऑल्सो रीड अबाउट द कमिटी जो कि वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी के बारे में पढ़ रहा है. देयर इज़ अ रिसेंट अपडेट, जो कमिटी है वो चेंज हुई है, तो आपको जो लॉ कमीशन है उसके बारे में भी पढ़ना चाहिए. दैट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राइट. प्लीज़ इसके बारे में आप पढ़िए. नेक्स्ट इज़ इंडिया के स्पेस मिशन. स्पेस मिशंस आर वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक फॉर क्लैट. काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इंडिया इज़ रियली डूइंग वेरी ग्रेट इन स्पेस मिशन. इसरो, कूडोज टू इसरो. आप लोग इसरो के विजन 2047 को भी पढ़ सकते हैं. दैट इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रीड अबाउट. डेफिनेटली सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आर गगनयान मिशन, व्योम मित्रा. गगनयान मिशन इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम. व्योम मित्रा आपको पढ़ना चाहिए. देन यू मस्ट डेफिनेटली गो थ्रू इंडियाज़ नेशनल स्पेस, फर्स्ट National Space Day, which was celebrated on 23rd August on the occasion of first anniversary of Chandrayaan 3. तो Chandrayaan 3 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. 2 पूछा जा चुका है, बट डेफिनेटली यू कैन जस्ट गो थ्रू सम ऑफ द डिटेल्स. यू नेवर नो कि क्या आ जाए क्लैट के एग्जाम. मंगलयान 2, डेफिनेटली यू मस्ट रीड अबाउट दिस. इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस स्टेशन विच इज़ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मास, आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए. देन यू मस्ट ऑल्सो रीड अबाउट लुपिक्स विच इज़ अ लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन. इट्स अ जॉइंट प्रोग्राम बाय इसरो एंड JAXA. JAXA इज जापान्स एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी समथिंग. यू मस्ट प्लीज़, इफ़ आई एम रॉन्ग आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हो इसका फुल फॉर्म देना. सो यू मस्ट ऑल्सो रीड अबाउट दिस. India and Japan are jointly conducting this program to explore the moon's south pole. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. चंद्रयान 3 वॉज ऑन दी सेम लाइन्स.
चंद्रयान 3 जो था वो साउथ पोल, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड इट्स रोवर or to conduct a mission on the south pole of moon, right? So you must definitely go through these. Next is BRICS Summit. Very important topic for this year's CLAD 2025 paper. 16th BRICS Summit हुआ था इस बारी कजान रशिया में. You must go through the new members that have become new, like the new members जो कि ब्रिक्स के नए मेंबर बने हैं, विच आर इजिप्ट, एथियोपिया, ईरान एंड द UAE. Saudi Arabia is also, like Saudi Arabia attended the summit 16, though it is not a member right now. But definitely a lot of countries are interested into becoming a member country for BRICS. So बहुत important topic. उसके अलावा जो बहुत important topic बनते हैं BRICS से related, they are BRICS की currency. एंड दी अदर इज़ इंडिया चाइना LAC बॉर्डर एग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट. तो इंडिया LAC एग्रीमेंट में बेसिकली इंडिया और चाइना में जो एक कोल्ड वार टाइप की सिचुएशन चल रही थी, तो उसमें थोड़ी सी शांति आई है. एंड दे हैव मूव टू दी पेट्रोलिंग पॉइंट जो कि 2019 में हुआ करता था, दी ओल्ड पेट्रोलिंग पॉइंट्स. सो आपको डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ना चाहिए. इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं, यू मस्ट गो थ्रू देम. बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ बिकॉज जो क्लैड का करंट अफेयर रहता है, दैट दे आर बेसिकली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, है ना. न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लगा देते हैं और फिर उसमें से कुछ चीज़ें ब्लैंक कर देते हैं और आपसे जो क्वेश्चंस हैं उस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड्स लेके और फिर उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक जिसके लिए क्लैड इंटरेस्टेड हो सकता है. और ये अगर इंटरेस्टेड होगा तो हो सकता है कि ब्रिक्स का भी मेंशन कहीं ना कहीं हो, क्योंकि ये जो जो नई चीज़ हुई है, जो एग्रीमेंट हुआ है, दैट इज़ जस्ट 16 ब्रिक्स समिट जो हुआ था उसके बहुत करीब और उससे ही रिलेटेड कहीं ना कहीं टॉपिक बनता है. तो डेफिनेटली गो थ्रू दिस. नेक्स्ट इज some other topics that you must definitely go through. समुद्रयान मिशन जो कि इंडिया का पहला मिशन है टू द डीप ओशन, है ना. काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगेन. ये लॉन्च हुआ था 29 अक्टूबर 2021 में बाय NIOT विच इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई. पर काफ़ी ज़्यादा नए मिशन प्लान हुए हैं इसी मिशन से रिलेटेड. तो डेफिनेटली यू मस्ट रीड अबाउट देम. इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था. 2025 में भी कुछ इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट अपडेट्स होने वाले हैं. तो डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू दिस टॉपिक. अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इफ़ यू हैव टाइम लेफ्ट यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दिस. नेक्स्ट इज डेफिनेटली नोबेल प्राइज़ 2024. यू मस्ट ट्राई टू लर्न दी डिटेल्स. तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको याद करने हैं. क्या क्या याद करना है आपको? नोबेल प्राइज़ विनर्स आपको याद करने हैं, आपको रामसार कन्वेंशन के बारे में पढ़ना है. और रामसार लिस्ट जो है, इंडिया में बहुत ज़्यादा रामसार साइट्स इंक्लूड हुई है. रीड अबाउट दैम, उनको याद करने की कोशिश करो. वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं उसमें भी बहुत, उसकी जो लिस्ट है उसमें भी बहुत ज़्यादा नए अपडेट्स हैं. तो डेफिनेटली आपको वो पढ़ना चाहिए. इलेक्शन अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारे इलेक्शंस हुए हैं इस साल. श्रीलंका, पाकिस्तान, रशिया, USA, UK, ऑफ कोर्स इंडिया. तो आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए. ईरान में भी अनफॉर्चुनेटली देयर वाज दिस एक्सीडेंट ऑफ देयर प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ पर भी चीज़ें चेंज हुई है. तो ये जो इम्पोर्टेंट पोस्ट्स हैं जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर और अलग अलग मिनिस्टर्स जो हेल्ड करते हैं अराउंड द वर्ल्ड, आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए. डेफिनेटली इंडिया के न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको मालूम होने चाहिए. यू मस्ट रिमेंबर ऑल द इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज दैट आर जो कि किसी मिनिस्टर के द्वारा जो बेसिकली जो नए नए मिनिस्टर्स बने आपको वो याद करने ही चाहिए. Definitely that is something that you must be doing. If you have not done, that must be the first thing that you must be doing, because हर साल एक या दो क्वेश्चन आ जाता है मिनिस्ट्री से रिलेटेड, इंडिया की मिनिस्ट्री से रिलेटेड. सो दिस इज़ वॉट यू मस्ट डेफिनेटली गो थ्रू. अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जो कि इम्पॉर्टेंट है. आई हैव नॉट मेंशन बांग्लादेश कूप.
आप लोग बांग्लादेश कूप जो है उससे भी रिलेटेड जो जीके है, यू मस्ट गो थ्रू दैट। डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो यू कैन ऑलवेज गो थ्रू द फॉलोइंग टॉपिक्स। डेफिनेटली इन्हीं टॉपिक्स से गो थ्रू करना, अगर आपके पास आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, आपके पास सिर्फ 24-48 आवर्स हैं, गो थ्रू दिस टॉपिक, दैट्स इट बस। नेक्स्ट बोनस आपके लिए इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स हैं। नाउ लीगल करंट अफेयर्स इसलिए भी क्योंकि लीगल रीजनिंग जो है उसमें अगेन पैसेजेस आ जाते हैं। क्या हेल्प होगा आपको इससे? हेल्प ये होगा कि जो लीगल के पैसेजेस हैं, अगर लीगल के पैसेजेस भी लीगल जो नए टॉपिक्स, नए बिल्स, नए अमेंडमेंट चल रहे हैं उससे रिलेटेड पैसेजेस आते हैं। नाउ दे आर वेरी न्यू फॉर यू टू रीड। अगर कोई ऐसा पैसेज है जो कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप ज़्यादा टाइम कंज्यूम करोगे उसको पढ़ने में और समझने में। पर अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, यू आर फ्रेंडली विद दैट टॉपिक, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाता है उसको पढ़ना और समझना। दिस इज़ दी ओनली रीज़न आई वुड आस्क यू पीपल टू गो थ्रू ऑल दोज टॉपिक्स। आई जस्ट रीड दैम आउट लाउड वंस फॉर यू पीपल। ये लिस्ट है, आप लोग इसके ऊपर बिल्कुल सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट इज वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024। यू मस्ट डेफिनेटली गो थ्रू दिस। बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत सारे नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यू मस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक। यू मस्ट रीड दिस विद द फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगेन दिस इज़ गोना बी इम्पॉर्टेंट। एंड यू कैन ऑल्सो गो थ्रू एनिमी प्रॉपर्टी बिल, राइट? तो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, उसके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। दैट इज़ गोना बी अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस साल का वो है न्यू क्रिमिनल लॉज, तीनों है ना, आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए, इनको अमेंड कर दिया गया है। आईपीसी को बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को चेंज कर दिया गया है बीएनएस में, विच इज़ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एंड इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसको चेंज कर दिया गया है बीएसए में, विच इज़ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए। यू मस्ट ऑल्सो रीड अबाउट दी असेंट डेट एंड दी इन्फोर्समेंट डेट। असेंट डेट होता है जिस दिन बिल के ऊपर प्रेसिडेंट साइन कर देता है, वो लॉ बन जाता है, दैट इज़ दी असेंट डेट। और जिस दिन से उसको इन्फोर्स किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कमेंसमेंट डेट या इन्फोर्समेंट डेट। तो आपको वो दोनों पढ़ना चाहिए। जस्ट गो थ्रू द डेट्स वंस। आई फील देयर सम एरर, इसमें कुछ एराटा है, तो आप लोग प्लीज़ ये जो डेट्स हैं इसको एक बार देख लेना। ऑफकोर्स दी इन्फोर्समेंट डेट आर करेक्ट, 1 जुलाई 2024 से तीनों लागू हो गए। असेंट डेट एक बार आप लोगों को चेक करनी चाहिए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना इफ़ देयर आर सम चेंजेस इनटू दिस असेंट डेट। नेक्स्ट एंटी चीटिंग बिल 2024। पब्लिक एग्जामिनेशन जो होती है उसमें जो चीटिंग होती है उससे रिलेटेड बिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आपको डेफिनेटली ये इसके बारे में पढ़ना चाहिए। अगेन सेक्शन 9 इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसके बारे में पढ़ सकते हैं। एंड अ बिट ऑफ डिटेल्स यू मस्ट गो थ्रू, सो दैट अगर ये टॉपिक आता है आपके लीगल रीजनिंग सेक्शन में तो आपको नया सा ना लगे, आपको लगे कि आपने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है एंड यू कैन स्कीम थ्रू द टॉपिक। नेक्स्ट इज उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, which is to have like right now we don't have same civil laws for the country. फैमिली लॉ की ही बात करो तो हिंदू के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लगता है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट लगता है, मुस्लिम के ऊपर मुस्लिम लॉज हैं, मुस्लिम फैमिली लॉज है। तो इस तरीके से हम लोगों के यहाँ जो सिविल लॉज है वो बटे हुए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करेगा, वो पूरे देश के लिए एक सिविल कानून ले आएगा। सो अगेन एन इम्पॉर्टेंट लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चलता रहता है इसके ऊपर। यू मस्ट डेफिनेटली गो थ्रू दिस इज़ अ पार्ट ऑफ DPSP 2, तो आपको डेफिनेटली इसको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टेटहुड डिमांड बाय लद्दाख शेड्यूल 6। आपको डेफिनेटली गो थ्रू करना चाहिए टॉपिक से, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, पूरे साल भर न्यूज़ में रहा है। सो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आप लोगों के लीगल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। Next, of course, I've already mentioned freedom of religion. You must go through preventive detention. I'll say you must go through the FRs. जो fundamental rights हैं वो आपको definitely मालूम होने चाहिए. That helps a lot. जितने भी fundamental rights हैं, और उसके बाद आपको
डेफिनेटली प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो न्यू गाइडलाइंस हैं वो भी गो थ्रू करना चाहिए. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एआई ट्रीटी. इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डाउट होता है बच्चों को. काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ होती है आप लोगों के लिए, तो आई डेफिनेटली सजेस्ट कि आप लोग इसके बारे में ज़रूर पढ़ें. इसलिए भी क्योंकि ये ना ही सिर्फ आपके लीगल रीजनिंग बल्कि आपके क्रिटिकल रीजनिंग और आरसी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, देयर इज़ अ गुड चांस कि आरसी या सीआर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई पैसेज आ जाए. तो डेफिनेटली पढ़ लेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, आपको हेल्प करेगा टू मेक योर डिसीजंस, राइट. डेफिनेटली यू मस्ट रीड. वेरी इंपॉर्टेंट इज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2183. लास्ट ईयर आया था, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है ऑन द स्कोप ऑफ द लॉ एंड स्टफ. तो आपको डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ना चाहिए. जस्ट गो थ्रू द hot articles that were written on this topic. इस साल के you can always search इंडियन एक्सप्रेस का जो न्यूज़ पोर्टल है, आप लोग वहाँ पर अगर इसको सर्च करेंगे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे. डेफिनेटली गो थ्रू दोज आर्टिकल्स. यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन दी हिंदू न्यूज़पेपर का जो पोर्टल है. आई होप आप लोगों के पास सब्सक्रिप्शन होगा, बिकॉज क्लैट एस्पिरेंट्स के पास डेफिनेटली होना चाहिए. नेक्स्ट इज डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन के जो rights regarding claiming maintenance under section 125. this was in the month of July. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला येस वुमेन मुस्लिम वुमेन्स डाइवर्स मुस्लिम वुमेन्स कैन ऑल्सो सीक और क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC. फैमिली लॉ से रिलेटेड टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. डेफिनेटली यू मस्ट गो थ्रू दिस. नाउ दिस इज़ आई गेस दिस इज़ इट. ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको गो थ्रू करने चाहिए. इसके अलावा अगर कुछ टॉपिक्स हैं जो भी क्लैट एस्पिरेंट है जो वीडियो देख रहे हैं उनको लगता है कि होने चाहिए, यू कैन ऑलवेज मेंशन देम इन द कमेंट बॉक्स. बाकी लोगों को बहुत हेल्प करेगा. आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डिस्कशन भी कर सकते हैं ऑन प्रॉबेबली लेट्स से ब्रिक्स का समिट, पहला समिट कहाँ हुआ था, या फिर G7 कंट्रीज़ के नाम लिख सकते हैं, ब्रिक्स कंट्रीज़ के नाम लिख सकते हैं, etc etc. You can always post all these answers on the comment box. डेफिनेटली बहुत सपोर्ट होता है. बाकी लोग जब पढ़ते हैं तो उनको याद रह जाती हैं चीज़ें, एंड लास्ट मोमेंट पर कोई भी पढ़ी हुई चीज़ यूजुअली हिट कर जाती है. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. नाउ दिस इज़ गोना बी वन ऑफ द लास्ट वीडियोज़ बिफोर CLAT 2025. सो टू ऑल द CLAT 2025 aspirants, very warm wishes from my side. Best of luck to you guys. You'll do good. Just have a good mindset. And please watch my video on rules and regulations which you have to follow on the test day. I've made a video on that. I've also mentioned about if you can underline the passage or not, because that has been there has been a lot of confusion regarding that. So please go through that video. And yeah, that's it from my side. Thank you for watching the video. God bless you all.